Dear students, today we are going to start Maths Part 2, Chapter number 1, Complex Numbers, Exercise 1.1. So now see question number 17. If a equals minus 1 plus root 3I upon 2 and b equals minus 1 minus root 3I upon 2, then show that a square equals b and b squares equals a. So you have to prove that square of a equal to b and square of b equals a. In terms of complex numbers, so for the proof, we should take a, since a equals minus 1 plus root 3I upon 2. See very carefully, value of a minus 1 plus root 3I upon 2 and value of b minus 1 minus root 3I upon 2 means a and b are conjugate of each other. So a and b are conjugate of each other. So you can say square of one conjugate number is the other and square of other conjugate number is the first. Like this, square of first conjugate number is the second and square of second conjugate number is the first. Means we have to prove that this. तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखो सिंस a इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, दिस इज गिवन and value of b minus 1 minus root 3I upon 2 given. तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. देखो स्क्वायर ऑफ a इज a स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू द होल स्क्वायर. हमने क्या किया यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. आफ्टर दैट a square as it is equal to using a plus b whole square formula. तो हमें देखो वैल्यू क्या रखनी है, वो ध्यान देना है कि वैल्यू ऑफ a इज माइनस वन एंड वैल्यू ऑफ b इज रूट थ्री आई अपॉन टू द होल स्क्वायर. सो a इक्वल टू माइनस वन एंड b इक्वल टू रूट थ्री आई और टू को हम स्क्वायर ऑफ टू ये डायरेक्टली इंटायर अपॉन फोर यहाँ लिख देते हैं. तो देखते हैं a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री आई इंटू वन. तो यहाँ पर माइनस वन करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस टू लिखा हुआ है प्लस रूट थ्री आई होल स्क्वायर. नाउ स्क्वायर ऑफ माइनस वन इज वन माइनस टू रूट थ्री आई एज इट इज प्लस रूट थ्री आई स्क्वायर इज थ्री आई स्क्वायर अपॉन फोर. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of I square. So I square is what? Minus 1. This is I square. I square equal to minus 1. So A square equals 1 minus 2 root 3I minus 3 because 3 into minus 1. Value of I square is minus 1. So 3 into minus 1 becomes minus 3. So 1 minus 2 root 3I minus 3 upon 4. Now 1 minus 3 is minus 2. So minus 2 root 3I upon 4. So what is common in these two terms? We see that 2 common. So taking 2 common, we get minus 1 minus root 3I upon 4. Now here 2 2 जा 4, ये कट हो गया. तो रिमेनिंग पार्ट अपने पास क्या आएगा, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, क्योंकि हम इसको 2 से कैंसिल कर दिए, 2 2 जा 4. तो डिनोमिनेटर में हो गया 2 और न्यूमरेटर में माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू. तो देयरफॉर दिस इज ए स्क्वायर. ये वैल्यू किसका है, देखो यहाँ से ए स्क्वायर, ये पूरा टर्म किसके लिए है, ए स्क्वायर के लिए. तो ए स्क्वायर इक्वल टू दिस मच. तो अब ये देखते हैं कि क्या वैल्यू ऑफ बी है, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू अपने को मिला, क्या मिला, ए स्क्वायर का वैल्यू. तो ए स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पर यही है बी, कि बी इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू. तो हम लोगों ने इसको क्या किया, तो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू दिस मच और यही है वैल्यू ऑफ बी. So you can say a square equal to b and let it be equation number 1. See once again, because this question is very important. Since a equal to minus 1 plus root 3I upon 2, हमें प्रूफ क्या करना है, a square equal to b मीन्स हमें स्क्वायर इसका करना है और इसके इक्वल आना चाहिए. Since a equal to minus 1 plus root 3I upon 2,
squaring on both sides, we get a square equals -1 plus root 3i upon 2 the whole square. Therefore, a square equal to -1 square minus 2 root 3i प्लस रूट 3i होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2ab, तो ये -1 को हमने मल्टीप्लाई डायरेक्टली यहाँ कर दिया, तो -2 रूट 3i, क्योंकि इंटू 1 या लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1 स्क्वायर -2 रूट 3i प्लस रूट 3i स्क्वायर अपॉन 4, एंड दिस विल बी 1 -2 रूट 3i plus 3i square, but value of I square is -1, so this will be 1 minus 2 root 3i minus 3 upon 4. 1 minus 3, it is -2, so -2 root 3i upon 4. Therefore, a square equal to, taking 2 common, 2 in the bracket -1 minus root 3i upon 4. So it is equal to -1 minus root 3i upon 2. Therefore, a square equal to b. ये अपना फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। नाउ सी दिस, बिकॉज a स्क्वायर इक्वल टू b, ये रहा अपना फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ b इक्वल टू a आना चाहिए, तो चलो उसको भी ट्राई करके देखते हैं। सिंस b इक्वल्स -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2, दिस इज वैल्यू ऑफ b। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट b स्क्वायर इक्वल -1 minus root 3i upon 2 the whole square, using फार्मूला अगेन। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी के लिए फार्मूला या a माइनस बी के लिए, लेकिन हमें a प्लस बी का फार्मूला यूज करोगे तो बेस्ट है, क्योंकि a इक्वल टू -1 लेते हैं और b इक्वल टू माइनस रूट 3i सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अपॉन स्क्वायर ऑफ 2। तो स्क्वायर ऑफ -1 प्लस 2 रूट 3i, बिकॉज -1 इंटू माइनस रूट 3i क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 रूट 3i प्लस माइनस रूट 3i होल स्क्वायर अपॉन 4। नाउ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, स्क्वायर ऑफ -1 is 1 प्लस 2 रूट 3i एज इट इज प्लस माइनस रूट 3i होल स्क्वायर इज 3i स्क्वायर। नाउ वी शुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, देखो आई स्क्वायर इज -1, तो जब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करोगे तो 3 इंटू -1 होगा, और 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3। तो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस 2 रूट 3i माइनस 3 अपॉन 4। नाउ 1 माइनस 3 इक्वल टू हाउ मच, -2, तो बी स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 2 रूट 3i अपॉन 4। अब इसमें भी क्या करना है, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स, व्हाट इज कॉमन इन दिस टू टर्म्स, टेकिंग 2 common from the numerator. So when we take common from the numerator, we should write here 2 in the bracket -1 plus root 3i upon 4, और इसको भी देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कट करोगे तो क्या मिलेगा, -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, विच इज वैल्यू ऑफ a। यही है वैल्यू ऑफ a यहाँ पर। अभी वैल्यू ऑफ a यहाँ से देख सकते हो कि दिस इज वैल्यू ऑफ a और नॉट, तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। देखो a इक्वल टू -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो वैल्यू ऑफ a इजिली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू a। देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू a, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की हेल्प ले करके क्या मिला हमें, फ्रॉम 1 एंड 2 a स्क्वायर इक्वल टू b एंड b स्क्वायर इक्वल टू a, हेंस प्रूव्ड। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया। और डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, मैंने जो फर्स्ट डे डेफिनेशंस बताए, प्रॉपर्टीज बताए कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो प्रॉपर्टीज को भी बीच बीच में रेफर करते रहिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर क्या है, -1, आई क्यूब माइनस आई रेज टू 4। So all the properties, all the values of I, and how will you find the higher power of I and their properties or definitions, imaginary part and real parts, दोनों को अच्छे से समझ लेना है। And one more thing, कि अभी जो स्टूडेंट जस्ट न्यू चैनल पे ज्वाइन हुए हैं, तो सबसे पहले वो फर्स्ट वीडियो को रेफर करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज and other rules are
गिवन, सब कुछ उसमें दिया गया है और इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग मतलब बेसिक थिंग्स उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसको समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। Now see next question. Question number 18. If x plus iy equal to a plus ib whole cube, so that x upon a plus y upon b equal to 4 into a square minus b square, यहाँ a square minus b square को ब्रैकेट में लिखना है। ओके, तो फिर से देख लो, if x plus iy equal to a plus ib whole cube, so that x upon a plus y upon b equal to 4 times a square minus b square। तो व्हाट डज इट मीन, पहले तो ये क्वेश्चन को देखो और समझो कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, यहाँ पर x एंड y के साथ क्या है, i है, यहाँ पर y के साथ i है और यहाँ पर b के साथ i है। और लेकिन यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है उसमें कोई भी i का टर्म नहीं है। इसका मीनिंग है कि हमें i को एलिमिनेट कर देना है और i को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले और इजी ट्रिक क्या है कि हम जब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तभी i एलिमिनेट होगा। तो हम देखते हैं कि पहले सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें एक रिलेशन मिलेगा, फिर वो रिलेशन को देखते हैं कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो फॉर द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंस x plus iy equal to a plus ib whole cube, this is given, you can say here given। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी होल क्यूब, देखो यहाँ पर होल क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पर नो पावर ऑफ x प्लस आई वाई मतलब 1। तो ऐसा नहीं कि हम इसे डायरेक्टली कंपेयर कर दें और हमको वैल्यूज मिलेंगी, नो, इट इज रॉन्ग मेथड। सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड में a प्लस आई बी होल क्यूब एक्सपैंड करना होगा, और किस फार्मूले से एक्सपैंड करोगे, a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला। तो सबसे पहले मैं रिपीट करता हूँ कि what is a plus b whole cube formula, just note down the formula first। yes, are you ready for the formula? okay, now write down a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, ये हो गया a plus b होल क्यूब फार्मूला। अब उसी फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको a प्लस आई बी होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे। तो देखो हमने जहाँ पर अभी फार्मूले में एक्सप्लेन किया b, तो जहाँ पर b मैंने बताया वहाँ पर क्या लिख दोगे, i इंटू बी, आई बी। तो हमारा ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाता है। और देखो इसको क्या होगा, तो देयरफॉर x प्लस आई वाई इक्वल ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू आई बी प्लस 3a इंटू आई स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b का स्क्वायर है तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आई क्यूब बी क्यूब। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। उसके हेल्प से यहाँ पर हमने a प्लस आई बी होल क्यूब को एक्सपेंड कर लिया। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। तो देयरफॉर x प्लस आई वाई इक्वल्स ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इंटू आई, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर 3a स्क्वायर b और i एक साथ रख लेते हैं ये सभी टर्म्स को, माइनस, अब ये माइनस क्यों आया इसको देखो, यहाँ पर क्या है आई स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड इन अदर क्वेश्चंस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो आई स्क्वायर इज -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3a इंटू बी स्क्वायर, और ये वैल्यू ऑफ आई क्यूब इज माइनस आई, तो प्लस इंटू माइनस माइनस बी क्यूब इंटू आई, क्योंकि आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई, तो बी क्यूब इंटू माइनस आई माइनस बी क्यूब इंटू आई। फिर से देख लो इसको, ए क्यूब
प्लस 3a² b इंटू आई माइनस 3ab² माइनस b क्यूब आई। हमने क्या किया इसमें, देखो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में क्या चेंजेस किया गया, ओनली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई क्यूब, वैल्यू ऑफ आई क्यूब इज -i। Therefore x plus iy equal to a cube minus 3ab square plus 3a square b into I माइनस b क्यूब आई। तो इसमें हमने क्या चेंजेस किया, जस्ट कलेक्टिंग रियल पार्ट, देखो a क्यूब और -3a² b, ये क्या है रियल पार्ट है, इनको हमने एक साथ लिख लिया, और इमेजनरी पार्ट मीन्स जिसमें i टर्म है, इन दोनों को एक साथ यहाँ पर लिख लिया। क्लियर? ओके। अब इसके बाद therefore x plus iy equal to a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3ab²। अब इन दोनों में हमने क्या किया, यहाँ पर टेकिंग ए कॉमन, देखो इन दोनों में ए कॉमन है तो ए मल्टीप्लाइड बाई a² माइनस 3b² प्लस व्हाट इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स, ओनली बी आई, देखो यहाँ भी बी आई है और यहाँ भी बी आई है, तो हम बी आई को कॉमन कर लेते हैं। द रिमेनिंग पार्ट इन द ब्रैकेट 3a² माइनस b², तो प्लस ब्रैकेट 3a² माइनस b² इंटू बी आई, ये पार्ट हो गए। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू ए इंटू a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b² इंटू बी आई। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, देखो आर ई लिखा है मीन्स रियल, आई एम दैट इज इमेजिनरी पार्ट्स, आर ई मीन्स रियल, आई एम इमेजिनरी। So comparing on both sides real and imaginary part, we get value of x equal to a into a² माइनस 3b²। देखो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है x, और यहाँ पर रियल पार्ट है a इंटू a² माइनस 3b²। सो x इक्वल्स a इंटू a² माइनस 3b²। So taking a on the left hand side, so therefore x upon a equals a² माइनस 3b² and let it be इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा हमने क्यों किया, तो हमने कॉमन क्यों किया और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर क्यों किया, हम इसको क्यों नहीं लिए लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज वी वांट x अपॉन a। यहाँ पर देखो हमें टू प्रूव क्या करना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 4 टाइम्स a² माइनस b²। तो हमें x अपॉन a रिक्वायरमेंट है, ये हमें चाहिए। इसके लिए देखो हमें क्या मिला, x इक्वल टू a इंटू a² माइनस 3b²। अगर हम इसको अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे, बाद में अगर हम चाहें कि x प्लस वाई को ऐड कर दें तो फिर ये ट्रांसफर नहीं होगा बाद में। तब यहाँ पर क्या लिखना है, देखो टेकिंग a ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अभी ये सेपरेट पार्ट है और यहाँ पर हम सेपरेट कर दिए, तो देयरफॉर x अपॉन a इक्वल्स a² माइनस 3b² एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमें x अपॉन a की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हम कंपेयर करते हैं इमेजनरी पार्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है i इंटू वाई, और आई वाई इस साइड में क्या है 3a² माइनस b² इंटू बी आई। तो इसमें से कंपेयर करोगे तो देखो आई वाई और यहाँ भी i है, तो आई गेट कैंसल्ड, तो देयरफॉर y इक्वल 3a² माइनस b² इंटू बी, क्योंकि आई दोनों साइड से कट कर देना है, निकल गया आई। तो ये रहा इमेजनरी पार्ट का वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ y मीन्स दिस इज इमेजनरी पार्ट। तो y इक्वल टू 3a² माइनस b² इंटू बी। नाउ वी सी दैट b is the multiple here, so taking b on the left hand side, so y upon b equals 3a² minus b²। why? Because we need y upon b, हमें y upon b की आवश्यकता है, ज़रूरत है यहाँ पर कि y upon b हमारा जो टू प्रूव वाला पार्ट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में x upon a प्लस y upon b रिक्वायर्ड है, चाहिए। तो इसके बाद अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए,
Therefore, y upon b equal to 3a square minus b square, because we need y upon b in the left hand side in the to prove part. तो x upon a plus y upon b, देखो हमें एक वैल्यू ऑफ x upon a भी मिल गई है और वैल्यू ऑफ y upon b भी मिल गया। तो x upon a एंड y upon b ये दोनों के वैल्यूज मिल गए। तो अब इनको क्या करना है, देखो बीच में क्या लिखा है प्लस, तो अगर इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या हमारा राइट हैंड साइड आता है। चलो नाउ लेट अस वी चेक। So therefore y upon b equal to 3a square minus b square, and let it be equation number 2. So this is equation number 1, x upon a equals a square minus 3b square, and from equation 2 y upon b equal to 3a square minus b square. So adding equation 1 and 2 we get. So x upon a plus y upon b, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं x upon a plus y upon b equals a square minus 3b square from first equation, a square minus 3b square plus 3a square minus b square from the second equation, 3a square minus b square. So adding like terms, now a square plus 3a square is 4a square, minus 3b square minus b square is minus 4b square. So we see that we get 4a square minus 4b square, but we want 4 times of a square minus b square. So taking 4 common from these two terms, we get 4 common here into a square minus b square. So therefore x upon a plus y upon b equal 4 multiplied by a square minus b square, ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ ब्रैकेट में ही लिखना है, ध्यान देना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर लिया कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट होता है कि x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी होल क्यूब, हमने यहाँ पर क्या किया, स्टार्टिंग फॉर द प्रूफ टेकिंग गिवन टर्म अपना क्या था, x प्लस आई वाई इक्वल्स ए प्लस आई बी होल क्यूब। ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पर एक्सपैंड किया। सबसे पहले क्या किया हमने, x प्लस आई वाई एज इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड a प्लस आई बी होल क्यूब के लिए मैंने सबसे इजी ट्रिक बता दिया कि क्या करना है यहाँ पर, a प्लस बी यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला। तो a प्लस बी होल क्यूब के लिए क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और जहाँ पर हम b लिख रहे हैं वहाँ पर i भी लिख दो। ये ध्यान देना, जैसे जहाँ बी स्क्वायर है तो आई बी होल स्क्वायर, अगर बी क्यूब आता है तो आई बी होल क्यूब, जैसे हमारे इन दोनों टर्म में यहाँ पर आया हुआ है। देखो आई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ आई क्यूब बी क्यूब, तो जब एक्सपैंड करोगे तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई बी प्लस 3a आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आई क्यूब बी क्यूब। तो अब ये टर्म में हमें क्या करना चाहिए, इसको वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1 एंड आई क्यूब इज माइनस आई, ये अपना सब्सटीट्यूट करते हुए सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना है, कलेक्टिंग द रियल पार्ट्स एट वन प्लेस एंड इमेजिनरी पार्ट एट अनदर प्लेस। तो वन प्लेस मतलब यहाँ पर हो गया, ये फर्स्ट टू टर्म्स हमने रियल ले लिया और ये इमेजिनरी पार्ट को अदर प्लेस पर यहाँ कलेक्ट कर लिया दोनों को। अब इसके बाद हमें क्या देखना था कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पर मिला हमें ए, हमने ये कॉमन किया, वी गेट ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन था, b इंटू आई, ये b आई कॉमन किया इन द ब्रैकेट 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आफ्टर दैट कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देखो आर ई ये शॉर्ट फॉर्म है रियल का और आई एम से इमेजिनरी, जैसा कि मैं डेफिनेशंस में फर्स्ट लेक्चर के दिन ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो x इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी। तो इन दोनों ही पार्ट में सिमिलैरिटी, देखो a को लेफ्ट में लिया तो हमें मिला x अपॉन इक्वल टू दिस मच, और सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर b को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो y अपॉन बी इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट a x अपॉन a प्लस y अपॉन b
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। अब देखो a स्क्वायर प्लस 3a² दे आर लाइक टर्म्स, बिकम्स 4a² और माइनस 3b² माइनस b² इज माइनस 4b²। तो 4 कॉमन into a² minus b². So we get x upon a plus y upon b equal to 4 multiplied by a² minus b², hence proved. ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19। अब 19th क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है उसको देखो। क्वेश्चन 19, इफ a plus 3i upon 2 plus ib equal to 1 minus I, so that 5a minus 7b equal to 0। अब इसमें भी देखो 5a माइनस 7b इक्वल टू 0, नो टर्म ऑफ i, मतलब इमेजनरी पार्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो उसको हमें कैसे प्रूफ करना है? नाउ सी द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर द प्रूफ, सिंस a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस ib इक्वल टू 1 माइनस i। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 आइडियाज हैं। जैसे एक तो हम 2 प्लस आई बी इंटू 2 प्लस आई बी यहाँ पर है, तो इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस आई बी से 2 माइनस आई बी, 2 माइनस आई बी से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अदरवाइज सिंस a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस आई बी इक्वल टू 1 माइनस आई, तो टेकिंग 2 प्लस आई बी ऑन द राइट हैंड साइड, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड। तो देयरफॉर a प्लस 3i इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई बी। हमने यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसा बोल सकते हो कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड या मल्टीप्लाइंग बाय 2 प्लस आई बी ऑन बोथ साइड्स, ये भी बोल सकते हो। ये 2 प्लस आई बी यहाँ कट हो गया और यहाँ पर रिमेनिंग है, तो 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई बी। तो ये किसी भी तरह से एक्सप्लेन करो, बट a प्लस 3i इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई बी, ये होना चाहिए। तो अब इसके बाद देयरफॉर a प्लस 3i इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई बी, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1 इंटू 2 बिकम्स 2, 1 इंटू आई बी प्लस आई बी, नाउ माइनस आई इंटू 2 माइनस 2i, माइनस आई इंटू आई बी माइनस आई स्क्वायर बी। तो 2 प्लस आई बी माइनस 2i माइनस आई स्क्वायर बी, ये टर्म्स हो गए यहाँ पर। अब इसके बाद therefore a plus 3i equal to 2 plus ib minus 2i। अब यहाँ देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1। सी वेरी केयरफुल्ली, तो यहाँ पर बहुत ही केयर करने की जरूरत है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो -1 इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो इट इज इक्वल टू प्लस बी, सिंस आई स्क्वायर इज -1। देयरफॉर a प्लस 3i इक्वल्स 2 प्लस बी, ये बी को हमने कहाँ पर लिखा? यहाँ पर 2 प्लस बी, और इन देखो आई बी माइनस 2i, इन दोनों में क्या है? इन दीज टू टर्म्स आई कॉमन, तो प्लस बी माइनस 2 इंटू आई, ये आई कॉमन कर लेते हैं। फिर से देख लो 2 प्लस बी, रियल पार्ट को एक जगह कलेक्ट किया, और जो इमेजिनरी पार्ट है मीन्स टर्म्स कंटेनिंग आई, उनको हमने क्या किया? आई कॉमन एंड हियर बी माइनस 2, तो प्लस बी माइनस 2 इंटू आई। Now comparing real and imaginary parts on both sides. Therefore, a equal to 2 plus b, देखो a रियल और यहाँ पर रियल क्या है? 2 प्लस b, तो a इक्वल्स 2 प्लस b, a इक्वल टू 2 प्लस b। अब इसके बाद एंड b माइनस 2, यहाँ देखो b माइनस 2 इक्वल टू 3, क्योंकि i एंड i गेट कैंसल्ड, हम लिखेंगे b माइनस 2 इंटू आई इक्वल टू 3i, तो आई क्या होगा? कट हो जाएगा, तो b माइनस 2 इक्वल टू 3। टेकिंग माइनस 2 ऑन द राइट हैंड साइड, देयरफॉर b इक्वल टू 5, तो हमें b का वैल्यू क्या मिल गया? 5। अब इफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b हियर, तो क्या मिलेगा? देयरफॉर a इक्वल्स 2 प्लस 5, दैट इज a इक्वल टू 7। फिर से देख लो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, a इक्वल टू 2 प्लस बी एंड b माइनस 2 इक्वल टू 3। तो हमें जब b माइनस 2 इक्वल टू 3 मिला तो हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, तो देयरफॉर b इक्वल टू 5, क्योंकि -2 को राइट हैंड साइड में यहाँ पर लाओगे तो क्या होगा? +2
and 3 plus 2 becomes 5. So substituting b equal to 5 here, therefore a equal to 2 plus 5, that is a equal to 7, means value of a equal to 7 and b equal to 5. अब हमें प्रूफ क्या करना था, देखो, शो दैट 5a minus 7b equal to 0. So taking left hand side of this part, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पार्ट, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा यहाँ पर 5a माइनस 7b, तो LHS इक्वल टू 5a माइनस 7b. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, a एंड b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इट इज इक्वल टू 5 इंटू 7 बिकॉज वैल्यू ऑफ a इज 7 माइनस 7 इंटू 5 बिकॉज वैल्यू ऑफ b इज 5. तो दिस इज 35 माइनस 35 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 5. So substituting these values in left hand side, we get RHS. तो इस तरह से हमें LHS इक्वल टू RHS मिल गया. तो इसके बाद अब हमें क्या करना है कि LHS 5a minus 7b, substituting the values, we get 35 minus 35 equal to 0 equal to RHS. Hence proved. Therefore 5a minus 7b equal to 0. अदरवाइज मान लो कि हमें ऐसा नहीं करना, अगर LHS को नहीं लेना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, b इक्वल टू 5 मिला, राइट. तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 7 टाइम्स b, तो देयरफॉर 7b इक्वल टू 35 करो, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ हमें क्या मिला, a इक्वल टू 7, तो मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, तो देयरफॉर 5a इक्वल टू 35. अब इसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो 5a माइनस 7b इक्वल टू 35 माइनस 35 इक्वल टू 0. तो उस तरह से भी हमें मिल जाएगा, जैसे विदाउट टेकिंग LHS यू कैन सॉल्व इट आल्सो. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से ध्यान दो, आफ्टर गेटिंग b इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर 7b इक्वल टू 35. आफ्टर गेटिंग a इक्वल टू 7 multiplying by 5 on both sides, therefore 5a equal to 35. So 5a minus 7b means subtracting equation 1 and 2. तो subtracting equation 1 from equation 2, ऐसा 1 2 करके ले सकते हो. तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5a minus 7b equal to 35 minus 35 equal to 0. Therefore LHS equal to RHS. Hence proved. तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इस तरह से ये क्वेश्चन को फिर से एक बार अगर रिपीट करना है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ. इफ a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस आई बी इक्वल टू 1 माइनस आई, सो दैट 5a माइनस 7b इक्वल टू 0. Since for the proof, since a plus 3i upon 2 plus ib equal to 1 minus i, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, taking 2 plus ib in the right hand side. तो therefore a plus 3i equal to 1 minus i into 2 plus ib. अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आई स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, पहले तो करोगे कि कलेक्टिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, मतलब राइट हैंड साइड में रियल पार्ट को एक प्लेस पर और इमेजिनरी पार्ट को अनदर प्लेस, मतलब उसी सेंटेंस में दूसरा पार्ट बना लो. तो इनको हम कलेक्ट करने के बाद, कलेक्टिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, वी गेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. आफ्टर दैट टेकिंग LHS और विदाउट टेकिंग LHS. तो मैंने एक मेथड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, अगर दूसरा मेथड स्टूडेंट को फॉलो करना है तो जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया वैसा ले सकते हैं. तो इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो. तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी डियर स्टूडेंट्स को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.